Hey guys, welcome back to channel Go for Agriculture. So on previous lecture में what pathway did we study? It's C4 pathway. ठीक है, so guys, if you're directly watching this video, I would request you to just go back to my previous and that previous lecture. क्योंकि आज का lecture है lecture 10. So if you're directly watching this, just go back to my lecture 8 and lecture 9. क्योंकि lecture 8 से I've started dark reaction. So इसमें I've covered C3 cycle और lecture 9 में C4. So आज का agenda होगा CAM pathway. ठीक है, so if you directly watch lecture 10 without covering 8 and 9, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. ठीक है, so इसलिए just watch my 8 and 9 lectures. I have gave in detailed explanation on C3 and C4. So after that, come back to this. It will be very easy for you to understand. ठीक है, सो आज का एजेंडा है फोटोसिंथेसिस पार्ट 6 डार्क रिएक्शन. सो इस टॉपिक से वी विल कंप्लीटली एंड द डार्क रिएक्शन, क्योंकि बेसिकली डार्क रिएक्शन तो 3 फेजेस हैं, C3, C4 एंड कैम पाथवे. ठीक है, सो आज का एजेंडा है कैम पाथवे एंड द डिफरेंसेस बिटवीन C3, C4 एंड कैम पाथवे. तो चलो अब शुरू करते हैं कैम साइकिल. सो देखो, ये कैम पाथवे जो है ये एक तरीका का मेटाबॉलिज्म है, इसलिए हम इसको क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं. क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ मेटाबॉलिज्म. सो ये कैम पाथवे occurs in the plants such as cactus, pineapple, onion, garlic, lily, etc. So अगर आप ध्यान से देखो कि कैक्टस जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ xerophytes. सो यहाँ पे xerophytes का मतलब these kind of plants कहाँ पे ग्रो होगा? डेजर्ट्स में. मतलब when the temperature is high, these plants grow there. ठीक है, कुछ regions में temperature will be so high. So in those kind of regions, cactus will grow, cacti. So ऐसे high temperature regions में ना एक क्या बोलते हैं, एक disadvantage है plants के लिए. ये है transpiration. अगर हाई टेम्परेचर होगा क्या होगा? दे विल बी लॉस ऑफ वाटर. देखो डेजर्ट रीजन्स जो है ना, दे आर लिटरली लाइक सो क्या बोलते हैं, वाटर शॉर्टेज होगा ना डेजर्ट रीजन्स में. सो यहाँ पे 2 है, एक है वाटर शॉर्टेज है. सो एंड ऑल्सो डेजर्ट रीजन्स में ना ये ट्रांसपिरेशन का लॉस बहुत ज्यादा है. सो इफ दीज 2 हैपेंस क्या होगा? द प्लांट विल डाई. So इसीलिए the plants like cactus they've adapted CAM pathway. So ये CAM pathway जो है it reduces the transpiration and also it will use the stored water. इसका मतलब उसने water जो store किया है it will use it in a proper manner without lossage. So ये है CAM pathway. So we will see how it will store and how it will use that water and how it will escape transpiration. हम सब देखेंगे. So पहला CAM pathway वाला plants कौन सा है? Cacti, pineapple, onion, garlic, lily, etc. So ये CAM plants they have a succulent habitat. Means they are basically the xerophytic plants. Means they grow in a very high temperature और उस regions में water का availability बहुत कम है. So इसलिए like they have to use the water very efficiently. So since transpiration loss बहुत ज्यादा होगा, so in order to compensate them, इसका adaptations क्या है? एक है reduced leaves. So यहाँ पे देख सकते हो cactus को इसका leaves बहुत reduced है. So if there is more surface area, there will be more transpiration. So इसलिए reduced leaves. दूसरा है the cuticle और तीसरा है sunken stomata. मैं बता दूं, यहाँ पे देख सकते हो ना sunken stomata. सो यहाँ पे 2 kinds of stomata देख सकते हो. ये है surface stomata means this kind of stomata are present in many kind of plants. मतलब वही epidermis के ऊपर होगा stomatas ऐसे. They won't be sunken. लेकिन succulents जो है they have a sunken stomata. यहाँ पे देख सकते हो ना, the stomata is inside. अगर मैं इस पिक्चर में दिखा दूं, देखिए ऐसे होगा, ऐसे अंदर होगा, इनसाइड द एपिडर्मिस लेयर या हाइपोडर्मिस लेयर अंदर होगा. सो इसलिए इट इज कॉल्ड संकन स्टोमेटा. सो इसका मतलब अगर स्टोमेटा थोड़ा सा नीचे होगा ना, सो इट विल रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन लॉस.
ठीक है। सो ये है sunken stomata इन द xerophytes। सो अगर हम इसका स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करें, सो स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। देखो इफ द स्टोमेटा ओपन, सो ये स्टोमेटा ओपन होने की वजह से क्या होगा, एक है ट्रांसपिरेशन होगा और दूसरा है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। सो बेसिकली मॉर्निंग में इफ द स्टोमेटा ओपन, देखो बेसिकली नॉर्मल प्लांट्स में स्टोमेटा कब ओपन होगा, डे टाइम में। सो डे टाइम में ओपन होगा, एट द सेम टाइम ट्रांसपिरेशन होगा एंड ऑल्सो ये गैसियस एक्सचेंज होने की वजह से द फोटोसिंथेसिस विल हैपन। सो लेकिन कुछ जैसे नॉर्मल रीजन्स में ना ट्रांसपिरेशन वोंट बी दैट मच। अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो क्या हुआ, मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि एनीवे वाटर विल बी अवेलेबल, सो फिर से इट विल टेक वाटर एंड फिर से इट विल स्टार्ट डूइंग इट्स फोटोसिंथेसिस। लेकिन डेजर्ट रीजन्स में ऐसा नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन शुड बी स्टॉप्ड या ट्रांसपिरेशन शुड बी कंट्रोल्ड, क्योंकि वाटर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा ना डिजर्ट्स में। सो इफ इट लॉस्ट ऑल द वाटर, सो फिर से क्या होगा, प्लांट विल डाई, फोटोसिंथेसिस वोंट टेक प्लेस। सो इसलिए ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टोमेटा विल ओपन इट ओनली एट नाइट टाइम एंड क्लोजेस ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि नाइट टाइम में टेम्परेचर वोंट बी दैट हाई, टेम्परेचर विल बी लो इन द डिजर्ट्स। सो इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन लॉस विल बी डिक्रीज्ड। सो इसलिए स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड क्लोजेस ड्यूरिंग द डे टाइम। सो ये है एक स्पेशल फीचर। सो हमें पता है कि लाइट रिएक्शन विल टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। सो इसलिए ट्रांसपिरेशन the light reaction takes place in the daytime only in the xerophytes. I'll tell you how. ठीक है। सो आपको समझ आ गया ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द संकन स्टोमेटा एंड नॉर्मल स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा होगा xerophytes में, कैक्टाई हो या गार्लिक, पाइनएप्पल, ऐसे सक्यूलेंट प्लांट्स में संकन स्टोमेटा होगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैम्प पाथवे। सो ये कैम्प पाथवे जो है, इट ऑल हैपेंस इन द मेसोफिल सेल्स ओनली। देखो C4 साइकिल कहाँ पे होगा, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स, लेकिन कैम्प पाथवे इट ओनली हैपेंस इन द मेसोफिल सेल्स। दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। सो ये है एपिडर्मिस, ठीक है, और इसके नीचे होगा मेसोफिल सेल्स, ऐसे अरेंजमेंट होगा। लाइक इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव शोड यू द मेसोफिल सेल्स आल्सो, ठीक है। सो ऐसे अरेंजमेंट होगा। सो हम इसका एक पार्ट लेके देखते हैं। सो दिस इज द प्लेस वेयर द होल कैम्प साइकिल अक्कर्स। सो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप देख सकते हो ना। सो दिस आर द मेसोफिल सेल। सो मेसोफिल सेल्स के अंदर दिस कैम्प पाथवे विल टेक्स प्लेस। सो चलो अब शुरू करते हैं। नाइट टाइम में क्या होगा, द स्टोमेटा विल ओपन, ठीक है, एज स्टोमेटा विल ओपन। सो ये स्टोमेटा ओपन होने की वजह से क्या होगा, exchange of gases will occur, means CO2 will come inside. CO2 will come inside the cell. So ये CO2 after coming inside the cell, this CO2 will convert into carbonic acid. So CO2 it will combine with water, क्योंकि water already mesophil cells में available है। So इसलिए CO2 combines with water and forms a carbonic acid, means H2CO3. देखो यहाँ पे स्टेप्स जो है ना, these are totally same as C4 cycle, ठीक है। That's why I've told you, go back to C4 cycle and C3 cycle, learn them and come back here, क्योंकि कैम्प पाथवे is just a combination of C3 and C4। यहाँ पे साइकिल्स दोनों सेम ही होगा, सेम as C4 and C3। इसलिए don't directly watch कैम्प पाथवे, not only here, anywhere you go, don't directly learn कैम्प पाथवे। First learn C3, इसके बाद C4, then come to कैम्प। It will be very easy for you, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोसेस जो है ना, ये सब C4 साइकिल से सेम है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर फ्रॉम विच इज अवेलेबल इन द मेसोफिल सेल्स, दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये H2CO3 इट डिसोसिएट्स इनटू टू कंपाउंड्स, टू आयोन्स, एक है H+ आयोन और दूसरा है बाइकार्बोनेट, मीन्स HCO3, दूसरा है HCO3 आयोन्स। सो ये HCO3 आयोन्स हमारे मेन आयोन है, बाइकार्बोनेट आयोन। सो दिस आयोन इट कंबाइंस विथ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। सो फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्लस HCO3 आयोन्स
they both combine and form oxaloacetic acid. So ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट पीईपी एंड HCO3 एक प्रोसेस है. So इसमें कौन सी एंजाइम यूज होगा? पेप्केस. ठीक है, इफ यू नो C4 साइकिल ना, यू विल इजीली टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. इसलिए लर्न द C4 साइकिल. पेप्केज और पेप्को दोनों सेम है. पेप्केज का मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम. ठीक है, सो फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड HCO3 या बाइकार्बोनेट आयंस अंडर पेप्केज एंजाइम फॉर्म्स ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ओ ये सो ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर से पेप्केज एंजाइम के इन्फ्लुएंस में इट फॉर्म्स मैलेट. एंड ऑल्सो यहाँ पे रिडक्शन टेक्स प्लेस, मीन्स NADH फॉर्म्स NAD प्लस H प्लस. यहाँ पे रिडक्शन होगा. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स मैलेट. सो ये मैलेट जो है इट विल स्टोर इन द वैक्यूल. सेल्स में वैक्यूल्स होता है ना प्लांट सेल्स में. सो दिस मैलेट विल गेट स्टोर्ड इन द वैक्यूल. बस यही होगा नाइट टाइम. ठीक है, सो नाइट टाइम में एक प्लांट का रोल होगा मैलेट और मैलिक एसिड को सिंथेसाइज करना. सो सिंथेसाइज करने के बाद इट विल स्टोर देम इन द वैक्यूल. बस इट इज डन फॉर द नाइट टाइम. नाइट टाइम में मैलेट प्रोडक्शन होगा, दैट्स इट. फिर से डे टाइम में आएंगे, क्या होगा? डे टाइम में मैलेट कहाँ पे स्टोर होगा? वैक्यूल में. सो दिस मैलेट कम्स आउट फ्रॉम द वैक्यूल एंड इट फॉर्म्स इनटू पायरुवेट. देखो मैलेट जो है इट्स अ 4 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, सो ये 4 कार्बन कंपाउंड फिर से पायरुवेट फॉर्म होगा. सो इस प्रोसेस में व्हाट विल हैपन? अगेन NADPH विल बी फॉर्म. देखो यहाँ पे NADH जो है इट हैज बीन reduced to NAD प्लस प्लस H प्लस. सो फिर से NADH तो फॉर्म करनी है ना. सो इसलिए दिस NAD प्लस जो है इट विल फॉर्म इनटू NADPH. और फिर से ये NADPH विल हेल्प इन द रिडक्शन प्रोसेस. ये तो साइकिल है ना. सो हमें जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं इसको फिर से रीजनरेट करनी है क्योंकि ये साइकिल है. सो इसलिए अगेन द NADH इज बीइंग फॉर्म्ड. सो दिस मैलिक एसिड विल बी सिंथेसाइज्ड इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड. दोनों सेम है, पायरुवेट और पायरुविक एसिड. सो ये तो 4 कार्बन कंपाउंड है. सो पायरुवेट तो 3 कार्बन कंपाउंड है. इसका मतलब मैलिक एसिड जो है इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू 2 कंपाउंड्स. एक है 1 कार्बन कंपाउंड दैट इज CO2 और दूसरा है 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज पायरुविक एसिड. ठीक है, और ये पायरुविक एसिड फिर से इट विल फॉर्म इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट. लेट मी जस्ट okay, so this pyruvic acid again it forms into phosphoenol pyruvate under the influence of क्या? ATP means triphosphate. Adenosine triphosphate is formed into AMP. So यहाँ पे 2 phosphates have been evolved. So ये 2 phosphates will help in phosphoenol pyruvate formation. ठीक है, यहाँ पे 3 phosphates है और यहाँ पे बस एक ही phosphate है, monophosphate. means how many phosphates have been evolved? 2 phosphates. ठीक है, सो 1 + 2 = 3, हेंस ATP. सो यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स जो इवॉल्व हुआ है इट विल बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट. और ये फिर से PEP इट विल हेल्प इन एक्सेप्टिंग द HCO3 आयंस. फिर से साइकिल विल बी रिज्यूम्ड. और यहाँ पे CO2 जो इवॉल्व हुआ है ना मैलेट से, देखो मैलेट से 2 कॉम्पाउंड्स हैव बीन इवॉल्व्ड. एक है 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट और दूसरा है 1 कार्बन कंपाउंड CO2. So this CO2 फिर से it will get accepted by RUBP and hence C3 cycle, Calvin cycle. So CAM pathway में 2 cycles involved है, एक है C3 और दूसरा है C4. So इस दोनों phases complete होने के बाद ही photosynthesis will complete. ठीक है, so यहाँ पे CO2 means यहाँ तक हमें जो प्रोसेस या साइकिल जो पड़ा है ये सब C4 साइकिल है. C4 ठीक है, HCO3, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, पायरुवेट, ये सब C4 साइकिल है. और ये CO2 RUBP विल एक्सेप्ट नो फ्रॉम दिस वन C3 विल स्टार्ट. ठीक है, सो C4 हैपेंस इन द नाइट टाइम.
C3 विल हैपन ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि C3 जो है तो लाइट रिएक्शन है, इसलिए इसका लाइट का जरूरत है, इसलिए इट हैपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम. ओके, सो दैट्स आई हैव टोल्ड यू. कैम पाथवे को पढ़ने से पहले learn C3 and C4, it will be very easy for you. Okay, so ठीक है, so ये तो cycle है. Once we'll see how it can be written. So we know stomata opens during the night time to escape transpiration. ठीक है, and the opening of stomata leads to exchange of gases which aids in entry of CO2 in the mesophyll cells. So CO2 entry होने के बाद क्या होगा? It will combine with water, क्योंकि water तो already mesophyll cells में present है, and it forms carbonic acid. H2CO3 carbonic acid है. So I forgot, under the enzyme carbonic anhydrase, Ca, carbonic anhydrase. So ये carbonic anhydrase के under these both will formed, वही carbonic acid will be formed. So ये carbonic acid will dissociate into H plus and HCO3 ions. So ये HCO3 ions कौन सा कंपाउंड एक्सेप्ट करेगा? PP, phosphoenol pyruvate, in the presence of peptase enzyme. पेपकेज और पेप को दोनों सेम है, एनीथिंग यू कैन राइट, लेकिन दोनों का वही एब्रिवेशन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस. सो इन दोनों कॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा? OAA, oxaloacetic will be formed, और ये oxaloacetic is undergoes reduction to form malic acid. This malic acid will be stored in the vacuole. So ये सब जो है ना, it happens only during the night time. So नाइट टाइम में कौन सा कंपाउंड सिंथेसाइज होगा? मैलिक एसिड. सो मैलिक एसिड सिंथेसाइज करने के बाद दैट्स इट, स्टॉप, द एंड. फिर से डे टाइम स्टार्ट होगा. सो डे टाइम में मैलिक एसिड विल कम आउट ऑफ द वैक्यूल एंड अंडरगोस रिडक्शन टू फॉर्म वही पायरुवेट से. देखो पहले मैलिक एसिड इट फॉर्म्स पायरुवेट, सॉरी ये पीपी नहीं, इट्स पायरुविक एसिड, इट्स माय फॉल्ट. ये तो पायरुविक एसिड है एंड फॉर्म CO2. Okay, so pyruvic acid is a 3 carbon compound and CO2 is a 1 carbon compound. और फिर से ये pyruvic acid forms phosphoenol pyruvate. और यहाँ पे phosphoenol pyruvate जो synthesize हुआ है, it accepts as bicarbonate ions during the night time. फिर से नाइट होने के बाद क्या होगा? It accepts the bicarbonate ions which is formed from the CO2 dissociation. फिर से CO2 formed is accepted by Rubico. देखो यहाँ पे CO2 जो फॉर्म हुआ है ना, ये CO2 1 कार्बन कंपाउंड वाला CO2, it will be accepted by Rubisco RUBP. The C3 cycle is done and forms glucose. So as a whole हम ऐसे कह सकते हैं C3 साइकिल आकर से ना मेसोफिल सेल्स. कैम पाथवे में सिर्फ मेसोफिल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ अदर सेल्स, क्योंकि C4 में हमें पढ़ा था बंडल शीट्स का इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन कैम पाथवे में only mesophyll cells is involved. ठीक है, so I hope it's clear the CAM pathway, क्योंकि ये तो बहुत easy है. Like if you know C3 and C4, you can easily know CAM pathway. So let's see the differences between C3, C4 and CAM. ठीक है, so C3 में primary acceptor कौन सा? RUBP. CO2 will be accepted by RUBP under Rubisco enzyme. C4 में PEP, phosphoenol pyruvate, under कौन सा enzyme? पेपकेस. कैम में फिर से पेप अंडर पेपकेस. सो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होगा रुबिस्को एंजाइम से, और C4 में पेपकेज एंजाइम और पेपको एनीथिंग, और कैम में पेपकेज और पेपको एंजाइम. सो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, सो CO2 प्लस RUBP इट फॉर्म्स अ 3 कार्बन कंपाउंड. सो ये है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. सो C4 में CO2 एंड फॉस्फेनॉल पायरुवेट फॉर्म्स ऑक्सैलोएस्टिक एसिड और मैलिक एसिड. और फिर से यहाँ पे भी CO2, देखो यहाँ पे CO2 का मतलब बाइकार्बोनेट आयोन्स. ठीक है, सो इट ऑल्सो फॉर्म्स ऑक्सैलोएस्टिक एसिड. सो ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं. सो टाइप ऑफ साइकिल C3 में बस C3 साइकिल ही होगा, लेकिन C4 में C3 एंड C4 साइकिल्स दोनों और अंडरगोइंग. ठीक है, और कैम पाथवे में C3 साइकिल ड्यूरिंग द डे, क्योंकि ये तो लाइट रिएक्शन है, लाइट का जरूरत है, और C4 अकर्स ड्यूरिंग द नाइट. C4 का मतलब बस यही मैलिक एसिड फॉर्मेशन. ठीक है, सो नेक्स्ट साइट ऑफ C3 साइकिल, इट हैपेंस इन द स्ट्रोमा, और C4 में C3 साइकिल हैपेंस इन द बंडल शीथ सेल्स,
क्योंकि C3 में C3 में रुबिस्को का जरूरत है. सो बेसिकली C4 प्लांट्स में हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन की वजह से रुबिस्को इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज कार्बन एक्सेप्टर इट अंडरगोज ऑक्सीजनेशन, मीन्स इट विल एक्सेप्ट ऑक्सीजन. सो इसके वजह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा. सो इसलिए मेसोफिल सेल्स के बिना इट अकर्स इन बंडल शीट सेल्स, क्योंकि बंडल शीट सेल्स थोड़ा सा अंदर होगा. ये है मेसोफिल सेल्स और ये है एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स, बंडल शीट सेल्स. सो इट विल बी बिट इनसाइड. सो यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, नो ऑक्सीजन विल बी देयर. सो इसलिए रुबिस्को विल बी एक्टिंग एज अ CO2 एक्सेप्टर ओनली. इसलिए C3 साइकिल occurs in bundle sheet cells in C4 plants. नेक्स्ट है कैम पाथवे, तो मेसोफिल सेल्स में ही होगा. नेक्स्ट क्रांस एनाटॉमी. आई हैव टोल्ड यू क्रांस एनाटॉमी का मतलब ये तो वैस्कुलर बंडल्स है. सो ये वैस्कुलर बंडल्स के सराउंडिंग एक बंडल शीट सेल्स होगा इन द फॉर्म ऑफ सर्किल. इसको हम क्रांस एनाटॉमी कहते हैं. देखो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ दिस इन C4 पाथवे इटसेल्फ. आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफिंग हियर. सो क्रांस एनाटॉमी तो ये है. सो C3 में इसका जरूरत नहीं है. क्रांस एनाटॉमी की जरूरत नहीं है क्योंकि C3 साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा. ये तो बंडल शीट सेल्स है, सो नो नीड. C4 में इट इज प्रेजेंट और कैम में भी प्रेजेंट, क्योंकि कैम में भी C4 साइकिल इज हैपनिंग. क्योंकि यहाँ पे मैलिक जो सिंथेसिस हो रहे हैं ना, ये सब C4 साइकिल है. सो इसलिए C4 साइकिल हैपनिंग का मतलब क्रांस एनाटॉमी की जरूरत है. ओके. नेक्स्ट फोटो रेस्पिरेशन विल बी प्रेजेंट. C4 में तो एब्सेंट है, कैम में तो इट इज प्रेजेंट इन द डे टाइम एंड एब्सेंट इन द नाइट टाइम. नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म. सो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म का मतलब दो टाइप्स होंगे, एक है ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है एग्रैन्युलर. सो ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम विल बी देयर, वही थाइलेकॉइड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, जिसको हम ग्रैनम कहते हैं. और एग्रैनुलर में बस ये स्ट्रोमा लैमेले ओनली विल बी देयर. देखो ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट में ना दो थाइलेकॉइड्स के बीच में ये स्ट्रोमा लैमेले होगा. ये तो बेसिकली नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है. लेकिन एग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट में ग्राना वोंट बी देयर, ओनली स्ट्रोमा लैमेले विल बी देयर. ठीक है. सो ये है क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म. सो C3 प्लांट्स में एब्सेंट और C4 में प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स दोनों का रोल है, इसलिए इट इज प्रेजेंट इन C4 प्लांट्स. लेकिन इट्स एब्सेंट इन दिस वन, क्या कैम पाथवे में. नेक्स्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C3 इज 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. C4 के लिए 35 to 45 एंड कैम के लिए मोर देन 45, क्योंकि कैम इज जीरोफाइटिक प्लांट्स और इसमें टेम्परेचर विल बी हाई टेम्परेचर. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन C3, C4 and CAM. So this guys, इस lecture में we have covered differences and most important CAM pathway. I'm again repeating, don't directly watch CAM pathway, just go through C3 and C4. ये बहुत important है. So once if you're done with C3 and C4, come back to CAM, you will easily understand. Literally, this doesn't include more explanation क्योंकि ये बहुत easy है. Okay. So this is it guys, thank you for watching. If you have any queries, you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section. You can also download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. So if you like this video, please subscribe to our channel so that you can get the daily notifications of every video we upload. Thank you for watching. Take care. Bye bye.